what is the right age to read scriptures to the kids? When the child is in your womb. अभी मैंने गर्भ संस्कार की बात की. जब आप पढ़ोगे, आप समझोगे, तो ही बच्चे को So scriptures मतलब कौन से scriptures है? अब simple stuff also. You start reading to the child, explaining to the child in the most easiest manner. आप of course बड़ी किताबें उनको समझा नहीं पाओगे, वो समझ भी नहीं पाएंगे. बट छोटी जो चीजें हैं वो आप स्टोरीज के माध्यम से, हमारा पूरा कल्चर ही स्टोरीज के माध्यम से है, जो हम पुराने. Can you share few examples, Anshuji? हाँ, so sure. So like I said, many scriptures are there. अभी वैदिक scriptures है, आप चारों वेदास तो आप पढ़ोगे नहीं, बट उनको समझाना शुरू करो. Start the spark in them कि आपको पता है क्या चार वेद होता है. आप जो like for example people speak about astronomy, anatomy, biology, geography, ये सब हमारे बेसिक स्क्रिप्चर्स में है. आपको इसका ज्ञात है क्या? आयुर्वेद ये हमारे सबसे पुराना है. We used to have operations on the body. In the scriptures, it's been written down, and we have it. And now we're doing the medical science. We've looked at the engineering for so many years. Have you looked at those things? Simple information आप देने लगो. But when I'm talking about the womb, you can read a lot of मंत्र जाप आप कर सकते हो, या फिर सहस्त्र नाम पढ़ सकते हो. अब ये सब चीजें ब्लाइंडली नहीं पढ़नी. मैं कोई भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो करने की बात नहीं करती हूँ. नेवर एवर. सो व्हेनेवर यू रीड समथिंग, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. कोई भी छोटे से छोटा आप श्लोक भी पढ़ते हो ना, तो उसका आप मतलब समझो. हमारे यहाँ पे बहुत सारे शुभाशतम होते हैं संस्कृत में, छोटे छोटे वर्सेस होते हैं विच हैव गॉट अ लॉट ऑफ मीनिंग. तो वो मीनिंग आप समझाइए बच्चों को. जरूरी नहीं कि आप बड़ा स्क्रिप्चर्स उनको लेके समझाइए. छोटा वैदिक स्क्रिप्चर, ऋग्वेदा में, आयुर्वेदा में, उपनिषद में छोटे वर्सेस है जो बच्चों को सिखाया जा सकता है. देयर आर लॉट ऑफ बुक्स दैट आर कमिंग इन रामायण, महाभारत, उपनिषद्स फॉर चिल्ड्रन. आप उनको उठाइए, पिक अप पीसेस एंड गिव इट टू देम. दोस थिंग्स कैन बी टॉट टू चिल्ड्रन. And you can start off the scriptures if they feel interested, and that's what the beauty of spirituality is. सब कुछ scriptures में नहीं होता, self inquiry में होता है. तो जो भी आप सिखाओगे उसमें self inquiry बहुत जरूरी है. ये भी एक प्रॉब्लम है पेरेंट्स के साथ में कि मुझे मेरा बच्चा स्क्रिप्चर्स में या फिर लिटरेचर में बहुत हाई चाहिए, तो मैंने पढ़ा दिया, रट्टा कर दिया. बच्चे को सब आ गया पर बच्चे को कुछ समझा नहीं. बच्चा बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, फिर आता है, तब तक उसका कोई ज्ञान का कहीं पे भी कुछ भी नहीं होता. वो सिर्फ तोता है. तोता नहीं बनना है, उसको सीखना है. आप 10 स्क्रिप्चर्स में से आधा भी पढ़ लिया और वो पूरी तरीके से जी लिया, यू आर गुड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. सो you start off scriptures very quickly if you want to. There is no problem. So, Ashilji, we can move to the next question from one of our parents only. They want to know that, how to develop spiritual question in young kids. So, like you very well said, that we need to start from when the child is in our womb. So, I'm sure this question of the parents is very well answered already. So, we can move to the next question. Can I answer that question a little more? Just I'll give you 2-3 tips, because होता है ना कि काफी बार बच्चे बड़े हो गए, you cannot put them back in the womb, no, to start off the process again. So जो बच्चे already बड़े हैं, उनके लिए process अगर आपको शुरू करना है, it's never too late to begin. You can start with gratitude. You can start with your own self-awareness. You can ask the child. You can try learning forgiveness with the child. You can start prayers with the child. Prayers religious नहीं होते, prayers spiritual होते हैं. So when you are connecting with the universe and praying for the well-being of the entire world, that is a prayer. Prayer is what you are telling your own self or the higher self or the universe or the deity you believe in, whatever you want, or the energy source. ये साथ में करिए आप, बच्चे के साथ करिए. Gratitude बच्चे के साथ करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी अगर 6-7 साल का हो चुका है बच्चा, तो वो
2-3 साल के माइंड स्पेस में तो जाएगा नहीं, वो इमिटेट करने के मोड में है, तो जो आप करोगे वो ही वो करेगा. So you will have to start doing that. Gratitude, respect others. प्लीज मेहरबानी करके झूठ बोलना मत सिखाइए बच्चों को, क्योंकि आप बोलते हो बच्चों को झूठ मत बोलना, और किसी का फोन आता है बोलते बेटा मैं घर पे नहीं हूँ. You are starting that thing in the house. They are imitating exactly what you're doing. So they will know कि छोटा छोटा झूठ बोलना चलता है, चलता नहीं है. जो वो आप सिखाते हो वही वो सीखते हैं. तो बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ वेयर टू से नो. दैट्स ऑल्सो अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, क्योंकि खुद का एक बाउंड्री क्रिएट करनी होती है. योर स्पिरिट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गॉड. The spirit, the body that the God has given you or the universe has given you, it's your responsibility. Learn to respect that. ये सब चीजें धीरे धीरे करके आप इनग्रेन करिए बच्चे में. तो in the age of 7-8, principles of being, what goes around comes around, examples है या जो भी है, you can mark out कि आज मैंने अच्छा किया. ये नहीं कहना है कि मैंने अच्छा किया तो बस अच्छा होना चाहिए अभी के अभी, नहीं, बट मैंने क्या किया. बी वेरी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. टीच द चिल्ड्रन माइंडफुलनेस. I think these chota techniques, if you teach younger generation, it's very nice.